Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today, in the series of 11 Commerce OCM, we'll be continuing with chapter number 4, that is Communication, E-commerce and Outsourcing. Okay, so before starting today's session, let us go to the recap what we have learned till now. We started from communication and process of communication. Then we learned about internet and network. What is internet? What is network? From where the word internet came. Then we learned about how to search information on our own. We have not gone through the video session for that, but we have learned that from a textbook portion. Then we have learned about the important topic of this chapter, that is e-commerce and scope of e-commerce. What is e-commerce? How it is done? What are the main scope or fields of e-commerce? Talking about e-commerce, any business which is done online with the help of internet and electronic gadgets is known as e-commerce. And talking about the scope or field of e-commerce, we have learned about four major fields of e-commerce, that is B2B, B2C, C2C and C2B. Then we move forward to tools of e-commerce. What we require for doing e-commerce: website, computer with internet connectivity and digital cash for payment or cards for payment. And then we learned about online transactions. We have learned both the ways, from the point of view of business, from the point of view of customer. And then we learned about 5 main mode of payment that are accepted: cash on delivery, check, net banking, debit card or credit card and digital cash. Then we learned about the 3 types of safety and security of transactions: safety against or risk against risk against security of transaction, risk against data collection and risk against intellectual property or privacy. तो अभी तक हमने ये चीजें पढ़ ली है. Now moving forward to the last topic of the chapter, that is outsourcing. We will be completing outsourcing in 2 parts of the video. Outsourcing के भी 2 part important है. Each question is of 5 mark each. So we will be discussing 1 5 mark question today and 1 5 mark question in the next video. Okay. Now talking about outsourcing. Outsourcing क्या है? Let us go through the definition first. फिर हम समझते हैं कि outsourcing actual में है क्या. Outsourcing means when a business unit gets principal or subsidiary works done in or out of the company by external agency. तो सबसे बड़ी काम की चीज है एक्सटर्नल एजेंसी. हमें क्या समझना चाहिए? एक्सटर्नल एजेंसी हमारे लिए नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब कोई भी बिजनेस यूनिट, व्हेन अ बिजनेस यूनिट गेट्स प्रिंसिपल और सब्सिडियरी वर्क्स डन, जब कोई बिजनेस यूनिट उसका मेन काम, प्रिंसिपल काम मींस मेन काम या फिर सब्सिडी या फिर ऐसा साइड का वर्क जो इतना लोड नहीं है, जो इतना कोर इंपॉर्टेंस नहीं है उनके लिए, वो करवाता है किसी एक्सटर्नल एजेंसी से, ईदर इन और आउट, या तो कंपनी के अंदर रहते हुए या कंपनी के बाहर रहते हुए, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग. When a business unit gets principal or subsidiary works done in or out of the company by external agencies. जब भी कोई business unit खुद का important काम, मेन या कोर काम या फिर कोई साइड वर्क, सब्सिडियरी वर्क किसी एक्सटर्नल एजेंसी से कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर से करवाता है, then it is known as outsourcing. एक वर्ड इसमें और ऐड करना पड़ेगा, it is on कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करके 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, ऐसे सिर्फ एक बार नहीं. एक बार किसी से भी करवाओगे तो आउटसोर्सिंग नहीं कहलाएगा. कंपनी का खुद का काम अगर कंपनी किसी और एजेंसी से कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर करवाती है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, देन इट इज नोन एज आउटसोर्सिंग. द बेस्ट एंड इजिएस्ट एग्जांपल इज वी कैन से वॉचमैन, सिक्योरिटी. आज हमारी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की सिक्योरिटी देखना, लेकिन स्कूल के अंदर वॉचमैन तो है, लेकिन वॉचमैन को सैलरी स्कूल नहीं देती. वॉचमैन को अपॉइंट स्कूल ने नहीं किया. वॉचमैन ने स्कूल ने सिक्योरिटी के लिए एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, सपोज एबीसी सिक्योरिटीज लिमिटेड. एबीसी सिक्योरिटीज की जॉब है कि स्कूल के गेट पे 24/7 वॉचमैन रहे. अगर उन्होंने एक वॉचमैन को अपॉइंट किया, अगर वो वॉचमैन लीव पे जाने वाला है तो एबीसी सिक्योरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि दूसरा वॉचमैन उस टाइम पे गेट पे अवेलेबल हो. सो दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग.
कंपनी खुद का कोई भी काम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे किसी और कंपनी को देती है, कंपनी में करने के लिए, कंपनी के बाहर करने के लिए, देन इट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। सेकंड बेस्ट एग्जांपल फॉर आवर स्कूल इज डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल में हमने एक XYZ पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्कूल के अंदर रहते हुए काम करने के लिए दिया है कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो स्कूल के बिहाफ पे स्टूडेंट्स को फूड प्रोवाइड करें। ओके, सो उन्होंने एक केटरिंग सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे स्कूल के अंदर रहते हुए स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए फूड प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अगर वो नहीं होता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फूड प्रोवाइड करने की? स्कूल की है। लेकिन स्कूल के बिहाफ पे कोई दूसरी केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे, दैट मीन्स दे हैव आउटसोर्स्ड देयर वर्क, दे हैव आउटसोर्स्ड देयर वर्क। ओके, आई होप कि आउटसोर्सिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। हमने कई बार सुना है कि कोई हमारा फ्रेंड्स या रिलेटिव यूएस की कंपनी में काम करता है, इंडिया में रहता है, यूके की कंपनी में काम करता है, यूके बेस्ड फर्म है, यूएस बेस्ड फर्म है, फॉरेन बेस्ड फर्म है, लेकिन काम हमारे यहीं से होता है। सो दैट इज कई तरह के कॉल सेंटर्स हैं, कई तरह के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका हेड ऑफिस है, मेन ऑफिस आउटसाइड कंट्रीज में है, लेकिन ड्यू टू चीप सोर्स ऑफ लेबर या कॉस्ट इफेक्टिव लेबर वो इंडिया में ऑफिसेस खोले हैं, ऐसी जगह ऑफिसेस खोले हैं जहां पे उनको अफोर्डेबल प्राइस में वर्क हो सकता हो। सो दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। कॉल सेंटर्स, फॉरेन बेस्ड फर्म्स यहाँ पे बैठ के काम फॉरेन में कर रहे, दैट ऑल दोज आर आउटसोर्स फर्म, ऑल दोज आर आउटसोर्स फर्म। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग इज ऑफ टू टाइप्स। One is BPO, second is KPO. Today we are going to learn about BPO. आज हम BPO के बारे में पढ़ेंगे। Now talking about BPO, BPO means Business Process Outsourcing. Business Process Outsourcing. And KPO means Knowledge Process Outsourcing. उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, यानी मीन्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Today we are going to learn about BPO. Now what is BPO? BPO means business process outsourcing, means to get the contractual services of external company or group to complete special work or process. जो काम हमने डिस्कस किए, इस तरह के काम करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक्सटर्नल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप, एक्सटर्नल कंपनी या ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट किया जाए टू कंप्लीट स्पेशल वर्क और प्रोसेस इज नोन एज BPO. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर रनिंग अ फाइनेंशियल कंपनी, हम कोई कंपनी रन कर रहे हैं, हमारे पास 10,000 क्लाइंट्स हैं और 10,000 क्लाइंट्स की अकाउंटिंग डिटेल्स हमें देखनी पड़ती है। तो हमारी एक्सपर्टीज सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में है या फाइनेंशियल डेटा कंप्लीट करने में है, लेकिन हमें बेसिक वर्क भी करना पड़ता है। तो हमने जो डेटा एंट्री करनी पड़ती है, जो डेटा कलेक्ट करके कंप्यूटर में फीड करना रहता है, उसका काम हमने किसी दूसरी छोटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दिया कि हम आपको मंथली 50,000 देंगे, आपको हमारे 10,000 क्लाइंट्स का डेटा एंटर करके हमें सॉफ्ट कॉपी देनी है। Okay, so that is outsourcing, that is business process BPO, that is BPO. Same is call center. US based फॉरेन कंपनीज ने इंडिया के अंदर कॉल सेंटर ओपन कर दिए, ठीक है। भले यूएस से कॉल आएगा लेकिन लाइन डाइवर्ट हो जाएगी इंडिया में। इंडिया में बैठा कोई भी एग्जीक्यूटिव यूएस के क्लाइंट को हैंडल करेगा। ओके, सो दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉट नेक्स्ट टॉपिक इज, बात आती है कि व्हाई डू वी रिक्वायर BPO? BPO से एडवांटेजेस क्या है, BPO के हमें इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सो टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ BPO, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ BPO इज कॉस्ट कटिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई काम मैं स्कूल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रहते मुझे खुद को अगर 10 रुपीज में कॉस्टिंग बैठ रही है और वही काम कोई दूसरी फर्म को मैं आउटसोर्स करता हूं, तो अगर 10 रुपीज तो नहीं, लेकिन 8 रुपीज, 7 रुपीज और 9 रुपीज में करके देगी तो ही मैं उसको अपॉइंट करूंगा। अगर जो काम मैं 10 रुपीज में कर रहा हूँ, अगर उसी काम में मुझे कोई 12 रुपीज बोलेंगे तो मैं अपॉइंट करूंगा नहीं। सो व्हेन डू वी आउटसोर्स? व्हेन द कॉस्ट इज बीन रिड्यूस्ड। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ कॉस्ट कटिंग, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ कॉस्ट कटिंग। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग इनटू अ फाइनेंशियल फर्म, वी हैव अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ 5 CAs। ओके, तो अगर कोई खुद उस फर्म में खुद रह के मुझे डेटा एंट्री करनी पड़ रही है, बीइंग अ CA, तो मुझे वो डेटा एंट्री करनी पड़ी, तो आई एम वेस्टिंग माई वर्क फॉर सिली थिंग्स। मैं उस टाइम में कुछ और करके ज्यादा अर्न या ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकता हूँ। ओके, सो फॉर दैट आई आउटसोर्स दैट वर्क टू द वन हु इज नॉट दैट मच इफेक्टिव और हु इज नॉट गोइंग टू डू दैट मच प्रोडक्टिव वर्क दैट आई कैन डू। मतलब मैं उस काम को
बचा के, उस टाइम को बचा के कुछ और ज्यादा प्रोडक्टिव, कुछ और ज्यादा अर्निंग करने वाला काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसको कॉस्ट बचाने के लिए दूसरों को आउटसोर्स कर देता हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट कटिंग, एक्सपेंडिचर बचाना। ओके, सेकेंड थिंग इज focus on principal works of company, focus on principal works of a company। फॉर एग्जाम्पल हमने जो स्टार्टिंग में वॉचमैन वाला एग्जाम्पल या सिक्योरिटी वाला एग्जाम्पल है वही लेते हैं। इफ आई एम रनिंग अ स्कूल, आई हैव 10 टीचर्स, ओके, और 5 आवर्स डे स्कूल चलता है। तो अगर मैं किसी वॉचमैन को अपॉइंट नहीं करता तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि मैं खुद के टीचर्स को हाफ आवर्स सबको बोलूँ कि सब जाके गेट पे जाके ड्यूटी करें और बाकी 9 टीचर्स पढ़ाएंगे। तो उससे होगा क्या कि सिर्फ एट अ टाइम 9 टीचर्स कैन बी अवेलेबल फॉर माई टीचिंग पर्पज इन माई स्कूल। सो ऐसे करने से एक टीचर का लॉस मुझे फुल डे के लिए हो रहा है और ऐसा 365 डेज मुझे होगा। तो उसकी जगह अगर मैं किसी आउटसोर्स कर देता हूँ तो मेरे जो टीचर्स है, ये मेरा जो स्टाफ है, प्रिंसिपल स्टाफ, कोर स्टाफ है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको प्रिंसिपल वर्क मेन काम के लिए यूज कर सकता हूँ, उनको मैं मेन काम के लिए यूज कर सकता हूँ। सो दैट मीन्स फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क्स ऑफ कंपनी। हमारा फोकस जो है प्रिंसिपल वर्क की तरफ, कोर काम के, इंपॉर्टेंट काम की तरफ बढ़ जाएगा। ओके, सो सेकंड वन इज फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क्स ऑफ कंपनी। थर्ड थिंग इज बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी। दोनों तरफ से बेनिफिट होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मुझे जो साइड वर्क करना आउटसोर्स किया वो साइड वर्क मुझे नहीं करना पड़ेगा, तो जो मैं काम अब करूंगा वो ज्यादा एफिशिएंटली होगा। सेकंड थिंग, जो साइड वर्क हमने आउटसोर्स किया है वो उसी कंपनी को करेंगे जो रेगुलर बेसिस पे उसे करती आती है। सपोज डेटा एंट्री हमने आउटसोर्स करी तो डेटा एंट्री हम ऐसी फर्म को देंगे जिसका काम ही डेटा एंट्री करना है, तो वो हमसे ज्यादा फास्ट, हमसे ज्यादा कम टाइम में कर सकेंगे, इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकेंगे। तो ड्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ड्यूल एंड एफिशिएंसी का बेनिफिट फर्म को होता है। ओके, नेक्स्ट इज टू cater डायनेमिक डिमांड। टू कैटर डायनेमिक डिमांड मीन्स जो डे बाय डे की एवर चेंजिंग डिमांड्स है ऑर्गेनाइजेशन की, या जो एवर चेंजिंग डिमांड्स हमारे एनवायरमेंट की है, सराउंडिंग की है, हम उसको सर्व कर सकेंगे। नाउअडेज बिजनेस इतना मॉडर्नाइज हो चुका है कि इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है इन्वायरमेंट के, किसी न किसी की अलग अलग डिमांड्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए हमें टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो वो टाइम हमारे पास होगा, हम दूसरी डिमांड्स को फुलफिल कर सकेंगे। ओके, एंड लास्ट वन इज टू इंक्रीज प्रॉफिट। अब हमने देखा कि कितनी तरफ से हमें प्रॉफिटेबल सिचुएशन आ रही है। फर्स्ट जो काम हम 10 रुपीज में करते थे, शायद वो काम 7 रुपीज या 8 रुपीज में होगा, तो यहाँ हमारी कॉस्ट कटिंग हो गई, कॉस्ट बच गई तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। हम हमारे मेन काम पे फोकस करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे, तो ज्यादा एफिशिएंसी होगी, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आउटसोर्सिंग कहीं ना कहीं सब्सिडी वर्क्स की आउटसोर्सिंग है, ऐसे काम की आउटसोर्सिंग जो टाइम कंज्यूमिंग है, लेंदी है या स्ट्रेसफुल है, उसकी आउटसोर्सिंग करने से हम कहीं ना कहीं बिजनेस फर्म की या बिजनेस यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। Okay, so these are the 5 requirements of BPO: cost cutting, focus on principal works of company, benefit of efficiency, to cater dynamic demand, and to increase profit. Moving on to the last topic of today, that is scope of BPO. There are generally 2 scope of BPO. BPO के 2 scope है, front office outsourcing and second one is back office outsourcing. First one is okay. First one is front office outsourcing. Second one is back office outsourcing. First, front office outsourcing means सबको विजिबली पता चलेगा कि ये काम हमने आउटसोर्स किया है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी सर्विसेज, या फिर किसी हम ऑर्गेनाइजेशन में गए, हमने उसकी ऑर्गेनाइजेशन का रिसेप्शन डिपार्टमेंट या हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट किसी और कंपनी का आउटसोर्स कर दिया है, तो दैट इज नोन एज
front office outsourcing and another one is back office outsourcing. Back office outsourcing means कंपनी का काम एज एल इज उनके एम्प्लॉयज ही करेंगे, लेकिन पीछे से जो स्ट्रेसफुल काम है, जो टाइम टेकिंग काम है, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज कर देंगे, जिसका किसी को पता नहीं चलेगा. फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री, कोई कंपनी ने डेटा कलेक्ट करा, हमने अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल फर्म की बात करी, अकाउंटेंट से डेटा कलेक्ट करवा लिया, फिर उसकी एंट्री हम किसी और को दे रहे तो किसी को पता नहीं चलेगा. दैट इज नोन एज बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग. कॉल सेंटर्स, डेटा एंट्री वर्क्स, ऑल आर बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग. क्लियर? So this was our BPO, business process outsourcing. This whole is a 5 mark question. Go through it properly. अच्छे से ध्यान से करें. 5 mark question है, जनरली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. E-commerce, the scope of e-commerce, BPO and KPO. So we have covered 2 important topics. The last topic KPO will be covering in the last session of this next video of the chapter. If you are having any doubt, please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.